पता है आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्जनी के टेक्निकल टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए कैप्जनी में टेक्निकल टेस्ट का एक सेक्शन होता है जहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फास्टेस्ट एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग। देन करेक्ट ऑप्शन हेयर इज हैशिंग। हैशिंग गिव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ n. When we talk about binary search, it give a big of log n. When we talk about linear search, it give the big of log n. Then when we talk about ABL tree, it is the balance BST, then it give big of log n. Now, next question in C, what will the printf percentage d 5 Capgemini output? So the correct option here is ASCII of n. So, like we talk about then other option like Capgemini, because Capgemini is a string and it is the array of char. And when we talk about this one 5 Capgemini, it's the equal to Capgemini this one and this one is same because its array indexing is symmetric. That's why the correct option here is ASCII of n. When we solve this, we get n ASCII equal to 110. The correct option is percentage. Oh, sorry. Option number D, ASCII of n. Now, which sorting algorithm is the most efficient for nearly sorted data? So the correct option here is insertion sort, because insertion sort give the big of n for nearly sorted data, whereas quick sort and merge sort it give big of log big of n log n. When we talk about heap, it also give big of n log n. In DMS, what does ACID stand for? ACID stand for atomicity, consistency, isolation and durability. Option number A is the correct one. What will the output of following Python code? Now, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे x asterisk 2 when we get 0, 1, 0, 1. After that, we just multiply with we solve this one, we get 0. When we solve is this it means that it refers to the same list of object as this one, so it gives true. The correct option here is option number A. हम लोग सबसे पहले इस पार्ट सॉल्व करेंगे x asterisk 2, तो हम लोग को ये आंसर मिलेगा। हम लोग के पास यहाँ लिखा हुआ है 2, तो हम लोग बेसिकली ये हम लोग क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और ये हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे। इसका ओवरऑल आंसर हमारा क्या आएगा, ये आएगा। और इसमें कह रहे हैं इज दिस, तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, A is the correct option. Now, which data structure is used recursive intentionally? So the correct option here is stack. Which of these is not a feature of object-oriented programming? So the correct option here is compilation. Option number D. All other options like A, B, C is a part of object-oriented programming, but option D is not a part or not a feature of object-oriented programming. Now, in OS, what is tracing? Because tracing is a exclusive swapping between the memory or a disk. The correct option is option number A. Exclusive swapping between memory and disk is a tracing. Now in C++, which of these cannot be overloaded? So the correct option here is scope relocation operator, and option number C is not, it cannot be overloaded in C++. Now, time complexity of quicksort is a worst case. So the correct option here is option number D, big of n square. Now, in networking, which layer ensure reliable transmission? So the correct option here, option number C, transport layer, it ensure reliable transmission. Which SQL command is used to remove all the row but keep table structure? So the correct option here, option number C, 10k. 10k command is used to remove all the row but keep the table structure. Now, what is the output of this Java snippet? So the correct option here, now we have int x इक्वल टू 5. हमारे पास एक वेरिएबल है x नाम का, उसमें वैल्यू क्या है 5 स्टोर है। तो हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, सबसे पहले देखो इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग गेट करते हैं 5, ठीक। ये 5 को बेसिकली रिटर्न करेगा, उसके बाद हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी।
और फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू बढ़ा रहे तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल क्या होगा 5 + 7 दैट इज 12। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रावर्स ऑफ बाइनरी ट्री गिव notes in sorted order for BST? So the correct option here is in order. In order traversal of binary tree give node in sorted order. Now in Java, which of these keyword prevent method overriding? The correct option here is final. Final keyword is used to prevent method overriding. Now in operating system, which scheduling algorithm may cause starvation? The correct option here is option number D. Priority scheduling, it's the scheduling algorithm may cause starvation. Now, which data structure give big of n time, oh sorry, big of one time complexity for both insertion and deletion for both the end? So the correct option here is DQ. DQ is the data structure, it give the big of one time complexity for both insertion as well as a deletion from both the end. Now in big O notation, what is the complexity of matrix multiplication in Navi's algorithm? So the correct option here is big of n cube. Option number B, big of n cube. It is the time complexity of matrix multiplication in Navi's algorithm. Now in Java, what happen if you call thread.run instead of thread.start? It run the same thread. When we call instead of thread run, instead of thread start, we call thread run. It basically give or run same thread. So option of C is the correct one, run in the same thread. Which among of the following is a lossless compression technique? So the correct option here is ping. Option number C, ping is the among the lossless compression technique in all the option. Now what will the output of this C code? अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है x का जहाँ पे वैल्यू स्टोर है 10। हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 10। बेसिकली जो ये है ये पार्ट, ये क्या कर रहा है, ये असाइन कर रहा है 0 टू x। जो हमारा एक्सप्रेशन है इवॉल्व करेगा 0 दैट इज फॉल्स। सो हम लोग क्या कौन से ब्लॉक में जाएंगे, एल्स ब्लॉक में जाएंगे, जो कि प्रिंट करेगा नॉन जीरो प्रिंट करेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। बट यहाँ पे कुछ जो कैंडिडेट्स होंगे वो क्या प्रिंट करेंगे, जीरो प्रिंट करेंगे ड्यू टू द असाइनमेंट कंफ्यूजन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे जो x है, जो जीरो वैल्यू है, वो बेसिकली असाइन करेंगे x की। और बेसिकली हम लोग x अगर एक्सप्रेशन इवॉल्यूट करें तो जीरो बेसिकली क्या होता है, फॉल्स होता है। दैट्स व्हाई वी मूव टू द ब्लॉक इन एल्स पार्ट, वी प्रिंट नॉन जीरो हेयर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ डिबगिंग क्वेश्चन जावा का है, हमको एरर फाइंड करना है। इसमें एरर क्या होगा, देखो एरर जो होगी एरे इंडेक्सिंग आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन की होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, बिकॉज जो जावा एरे है जीरो इंडेक्स की बात की जाए तो वैलिड होता है इंडेक्स 0 से 4 तक, जो कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोग एसेसिंग कर रहे हैं एरे ऑफ 5 को, और ये बेसिकली थ्रो कर देगा रन टाइम एक्सेप्शन। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज एरे इंडेक्सिंग आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। तो हम लोग यहाँ बेसिकली ओवरऑल अगर बात की जाए, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 वैल्यू है, ठीक। और तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 0 से स्टार्टिंग, 0 1 2 3 4, ये 5 वैल्यू है। हम लोग क्या एक्सेस कर रहे हैं 5 की, जो बेसिकली हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, ये रन टाइम एक्सेप्शन शो कर देगा। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस पाइथन स्निपेट? इसका हम रिजल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट म्यूटेबल आर्गुमेंट है अक्रॉस द सेल। हम लोग कॉल कर रहे हैं, 1 कॉल करेंगे, 2 को कॉल करेंगे और 4 को कॉल करेंगे, सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, दैट इज 1 1 2 1 2 4। ये हमारा रिजल्ट आएगा इन तीनों फंक्शन से। अगर हम लोग बात करें फंक्शन 3 की, ये इसका बेसिकली एक ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है न्यू लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक। कॉल कर रहा है, ये कॉल करेगा किसको, ओन न्यू लिस्ट, दैट इज 3। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज 1 1 2 3 एंड 1 2 4। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको रॉन्ग बताना है C++ कोड में क्या है। तो यहाँ पे देखें क्या आएगा ओवरऑल। ओके ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट है, इंट इक्वल टू x है, हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और x की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। बेसिकली जो हम लोग कांस्टेंट है इंट x, ये मस्ट बी इनिशियलाइज एज अ डिक्लेरेशन विदाउट इनिशियलाइजिंग एंड कंपाइल एरर occur. That's why the correct option here is option number C, compilation error. Now output of this C code तो सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारा क्या शो करेगा,
ओके, सेगमेंटेशन एरर को, सेगमेंटेशन फॉल्ट यहाँ पे शो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जो है लिटरल स्ट्रिंग लिटरल जो कैप्जन में यहाँ पे है ये स्टोर है इन अ रीड ओनली मेमोरी के बेसिस पे, यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी के बेसिस पे यहाँ पे ये स्टोर किया गया है, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, अगर ये जो फिर अगर मॉडिफाई करेंगे तो ये रन टाइम में क्रैश हो जाएगा, दैट्स वाई ये हमारा क्या शो करेगा, एरर को शो करेगा। नाउ नाउ डिबगिंग एसक्यूएल की बात की जाए तो बेसिकली डिबगिंग एसक्यूएल हमारा क्या है यहाँ पे, इसके अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एरर क्या है, तो यहाँ पे एरर जो है वेयर के पास एरर है, क्योंकि वेयर मस्ट बी रिप्लेस बाय हैविंग, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमको यहाँ पे आउटपुट बताना है ओवरऑल, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा हमारे पास दोनों स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग में हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे स्टोर है, x1 इक्वल टू x2 है, ये इसकी बेसिकली हमारा क्या आएगा ओवरऑल फॉल्स आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स और ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। हाँ सर। कोड को बताएंगे इसमें हमारा आंसर क्या है। Now, अगर इसको ध्यान से देखें हमारे पास यहाँ पे आई इक्वल एक वेरिएबल है आई में, जहाँ पे 5 हमारे वैल्यू स्टोर है, हम लोग यहाँ परसेंटेज डी लगा रहे हैं, यहाँ पे आई को प्रिंट कर रहे हैं, आई प्लस प्लस प्रिंट कर रहे हैं, और हम लोग पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या है थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं आई को मल्टीपल टाइम इन सेम स्टेटमेंट, सो ये बेसिकली एक अनबिहेवियर यानी कि अनडिफाइंड बिहेवियर को शो करता है सी के अंदर। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो करेगा, वो है अनडिफाइंड बिहेवियर, क्योंकि हमारा जो आई है, आई वेरिएबल है, वो हर बार यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, मल्टीपल टाइम मॉडिफाई हो रहा है सेम स्टेटमेंट के अंदर, दैट्स व्हाई वी गेट एरर एंड वी गेट अनडिफाइंड बिहेवियर। सो जो हमारा आउटपुट होगा वो वेरी होगा कंपाइलर के हिसाब से, तो यहाँ पे एरर शो करेगा जो कि होगा अनडिफाइंड बिहेवियर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Now move to the next question. What will be the output of this code? हमारे पास एक A है, A में बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डेटा है, ठीक, लिस्ट है, और हम लोग यहाँ पे आसान करें B इक्वल टू A और B प्लस इक्वल टू 4 एंड 5, तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट है B क्या है, B ये जो लाइन है B इक्वल टू A का मतलब होता है कि हम लोग सेम लिस्ट को रिफर कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लस इक्वल टू का साइन मतलब हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं इन प्लेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पे ए को प्रिंट कर रहे हैं, ये हमारा ए के लिए प्रिंट होगा। अगर बी के लिए बात करें जाए तो ये सेम ही चीज प्रिंट करेगा, क्योंकि सेम ही लिस्ट को यहाँ पे दिखा रहा है 1, 2, 3, 4, 5 यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्लस प्लस की बात करें यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर लगा हुआ है। कंस्ट्रक्टर की बात की जाए तो ये लाइन हमारे कंस्ट्रक्टर है, जो कि फर्स्ट हम लोग कंस्ट्रक्टर रन होगा और प्रिंट करेगा ए को। अगर वहीं पे बात करें डिस्ट्रक्टर की, ये बेसिकली रन करेगा व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, तो ये प्रिंट करेगा बी को प्रिंट करेगा। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रिंट ए एंड बी, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों हमारा प्रिंट होगा, दोनों रन होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट वन, प्रिंट ए एंड बी। नाउ आउटपुट ऑफ दिस जावा कोड हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट में हमारे पास क्या है 10 प्लस 20 प्लस कैप्जिनी, तो इसका जो हमारा रिजल्ट होगा ये क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर देगा, यानी हमारा आंसर आएगा 30, साथ में इसको प्लस करेंगे हम लोग स्ट्रिंग को कैप्जिनी यहाँ पे लिख के आएगा। ठीक, ये इतना पार्ट हो गया पहले वाले का आउटपुट का। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, कैप्जिनी प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद स्ट्रिंग के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ जिसकी ऐड हो रहा है, तो ये बेसिकली ऐड नहीं होगा, ये 30 नहीं होगा, ये क्या होगा 10 और 20 हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट आएगा और ये ऊपर वाले का रिजल्ट आएगा, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पहले 30 कैप्जिनी आएगा, फिर कैप्जिनी और 10, 20 हमारा आंसर होगा। नाउ move to the next question, debugging OS concept. A process is a stack in a waiting state indefinitely due to the resource not being allocated. What is this called? The correct option here is
starvation. Option number B is the correct one. Now move to the next question. C debugging. So here अगर कैप्जनी की यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है, कैप्जनी लिखा हुआ है, परसेंटेज सी का इस्तेमाल किया गया है, तो 5 एरे है हमारे पास, यहाँ पे एरर की नाम है। तो ये क्या, ये बेसिकली हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एरे इक्वल टू 5, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा अगर इंडेक्स 5 की वैल्यू को। इंडेक्स 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, n है, ठीक। इंडेक्स y की वैल्यू प्रेजेंट करेगा तो हमारा क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या लिए, ऑप्शन नंबर बी m प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि इंडेक्स 5 की बात की जा रही है, तो m प्रिंट होकर हमारा आएगा। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? आउटपुट ऑफ दिस कोड इज, just see here, it is a tuple is a immutable, so but list inside tuple is mutable, so the correct option here is 1 2 99 4, so the correct option here is option number C। हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो इंडेक्स है यहाँ पे, ये जो पॉइंट करेगा ये इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट क्या करेगा, 0 वाली वैल्यू को, यानी इसको पॉइंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा। क्या कह रहा है कि 3 को रिप्लेस कर दो 99 से, तो हम लोग ने 3 को 99 से रिप्लेस कर दिया, बाकी एज इट इज रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्नकेट इज रॉन्ग? सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज टर्नकेट इज अ DDL, cannot be rolled back in most DUMS, so the correct option here is truncate cannot be rolled back. Now we solve this C++ question. Just see here, virtual is here, virtual give enable a runtime polymorphism, so the correct option here is derived, option B is the correct one, क्योंकि वर्चुअल क्या है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ओवरऑल हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो एक क्लास दूसरे क्लास को ड्राइव करे बेस क्लास को, तो ये पार्ट रन होगा, तो हमारा क्या प्रिंट होकर आएगा, ड्राइव्ड प्रिंट होकर आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आउटपुट बताना है, हमारे पास रेंज है, तो रेंज कहाँ तक है, 3 तक है, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू होगी 1 2 0 1 2, ये प्रिंट होकर आएगा। तो लास्ट में ये भी चीज़ है यहाँ पे प्रिंट आई कर रहे हैं, ठीक, और ये भी प्रिंट होगा, डन भी प्रिंट होगा, क्योंकि पाइथन के अंदर अगर फॉर एल्स की बात की जा रही है और यहाँ पे एल्स लगा हुआ है, तो ये बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा ओनली इफ लूप कंप्लीटली नॉर्मली नो ब्रेक। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज 0 1 2 एज वेल एज अ डन। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, क्योंकि पाइथन में फॉर एल्स और एल्स एग्जीक्यूट ओनली इफ लूप कंप्लीटली नॉर्मली नो ब्रेक, सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारा परसेंटेज डी लगा, साइज ऑफ ए है, इसका मतलब होता है कि ओवरऑल जो हमारी वैल्यू डिपेंड हो रही है, किस पे डिपेंड हो रही है, कंपाइलर पे डिपेंड हो रही है। तो हमारे पास जो यहाँ पे ए लगा है, ये क्या है, इज अ टाइप ऑफ इंट इन सी, बस टाइप के लिए क्या है, कितने बिट का है, 4 बाइट का है, और सम कंपाइलर की अगर बात की है तो वो क्या है, 2 बाइट का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, डिपेंड अपॉन कंपाइलर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। हम लोग यहाँ पे 2 4 नहीं लगा सकते, ये डिपेंड करता है किस पे, कंपाइलर पे डिपेंड करता है इसकी साइज, ठीक। अगर अब कंपाइलर चेंज होगा तो कभी कभी 4 दे देगा वैल्यू, कभी कभी 2 वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देगा। नाउ इसकी अगर बात करें, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे ए वेरिएबल है जहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक एरर आएगी, एरर क्या आएगी, यहाँ पे कंप्लीशन एरर आएगा, क्योंकि कैच जो ब्लॉक है मस्ट बी अ ऑर्डर मोस्ट स्पेसिफाई फर्स्ट। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा और ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन शुड कम बिफोर एक्सेप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज कंप्लीशन एरर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा यहाँ पे फंक्शन है ट्राई, फाइनली लगा हुआ है, रिटर्न करेंगे 1। फाइनली ब्लॉक बेसिकली ओवरराइड कर देता है रिटर्न वैल्यू को, जो कि है ऑफ ट्राई। जो करेक्ट ऑप्शन है यार इस ऑप्शन नंबर बी 2 हमारा प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि जो हमारा जो फाइनली ब्लॉक होगा ना, वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा ओवरराइड रिटर्न बाय द वैल्यू इन ट्राई। तो जो ट्राई की वैल्यू होगी उसको कौन ओवरराइड कर देगा, फाइनली ओवरराइड कर देगा, तो 2 हमारा यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। थैंक यू।